Praise the Lord. I hope you're doing good. Praise the Lord. मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे हो। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से प्रणाम करता हूँ। This 2020 year has come to an end now. ये 2020 का जो साल है अभी खत्म होने आया है। We are in December. और अभी हम दिसंबर में हैं। Christmas is hardly 4 or 5 days from here. और अभी क्रिसमस के लिए सिर्फ 4 या 5 दिन बचे हैं। I still remember how was my last year Christmas. और मुझे अभी भी याद है कि पिछले साल का क्रिसमस मेरा कैसे था। I hope it's a good time for you. और मैं आशा रखता हूँ कि आपके लिए भी अच्छा समय था। Before we get into this word, I want to pray with you. ये वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we come before you and ask you to bless us and feed us your word and teach us your ways. Help us to understand who you are and what you're doing. Open the eyes of understanding and save the people. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Turn with me to John chapter 14. और अभी आप मेरे साथ यूहन्ना का 14 अध्याय में आए। We'll read through a few verses and we'll go to a couple of portions of scriptures and finish our study today. और हम कुछ वचनों में जाएंगे, यहाँ वहाँ हम कुछ वचन पढ़ेंगे और आज का जो बाइबल स्टडी है उसे खत्म करेंगे। We saw how Jesus' young age, his birth was first, and then we saw his looks, and then we recently saw how Jesus is a servant king. हमने देखा यीशु मसीह के बारे में कि वो किस तरीके से वो पैदा हुए और उनका जीवन कैसा था, उनका बचपना कैसा था, और उसके बाद हमने देखा कि वो किस तरह एक राजा थे। And now we will see what kind of people is Jesus hanging out with. और अभी हम देखेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार के लोगों के साथ वो घूम रहे हैं। See, when we go to some churches, we will see one kind of people only, not different kinds of people, just one kind of group in that particular church. और जब आप कुछ कलीसिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक प्रकार के जो लोग हैं वो उस कलीसिया में जाते हैं। Some churches will have only doctors and engineers and people coming from great institutions. और कुछ कलीसिया में हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स है उस प्रकार के लोग उस कलीसिया में जाते हैं। Some churches will only have, certain caste people. और कुछ कलीसिया में हम देखते हैं कि कुछ जाति के लोग वहाँ पे जाते हैं। Some churches we go to, there are only people who are poor and downtrodden. और कुछ कलीसिया में हम देखते हैं कि सिर्फ गरीब लोग वहाँ पे जाते हैं। In some churches we see only old people. और कुछ कलीसिया में हम देखते हैं कि सिर्फ जो बूढ़े लोग हैं वो जाते हैं। People have different philosophy of ministry. सब लोगों का जो है अलग-अलग फिलॉसफी होता है सेवा का। But here we are going to see how Jesus served and what kind of people that Jesus hung out with, so that we can also learn from Jesus. और यहाँ पे हम देखेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार के लोगों के साथ वो घूमते थे ताकि हम उनसे सीख सकेंगे कि उन्होंने किस तरीके का सेवकाई की। In verse 1, Jesus tells his disciples, "Let your heart not be troubled. You believe in God, believe also in me." और वचन 1 में ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। I want you to imagine with me. और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ये सोचें। This is a big room. ये एक बड़ा रूम है। And there are 11 guys sitting. और यहाँ पे 11 लोग बैठे हुए हैं। And Jesus is sitting there and talking to them. और यीशु मसीह वहाँ पे बैठकर उनसे बात कर रहे हैं। You see, Jesus just spoke about his betrayal some time ago. और यीशु मसीह ने कुछ समय पहले उनको जो धोखा देने वाले हैं उसके बारे में उन्होंने बात की। We can see in the previous chapter all the incidents that which reflect on Judah going to betray Jesus. और हमने कुछ वचन पढ़ा है जिसमें यहूदा जो है वो किस तरीके से यीशु मसीह को धोखा देने वाला है। And then we will see also Peter trying to tell Jesus, "Hey, wherever you go, I'm going to be with you, Jesus." और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से पतरस जो है वो यीशु मसीह से कहता है कि चाहे कोई भी आपको धोखा दे लेकिन मैं आपको धोखा नहीं देने वाला हूँ, मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। Peter says, "Lord, I'm willing to even die for you." पतरस ने कहा कि प्रभु मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। Look at this, what Jesus says. और देखिए यीशु मसीह ने क्या। We see in verse 38 that Jesus says, "Will you lay down your life for my sake? Most assuredly I say to you, the rooster shall not crow till you have denied me 3 times." अगर हम यूहन्ना का 13वां में 38वां वचन में अगर हम देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ कि मूर्ख बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। You see, Jesus is saying, "You want to die for me?
और यहाँ पे आप देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए प्राण दोगे? Peter says, I'm going to die for you. और Jesus. पतरस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। Jesus is like, really? और यीशु मसीह कहते हैं कि सच में? But I want to tell you something. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। The rooster shall not crow till you deny me 3 times. और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है कि मुर्गा बांग ना देगा तब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। Look at these disciples of Jesus. आप यीशु मसीह के शिष्य को देखो। Jesus is finishing his work on this earth. यीशु मसीह अपना जो काम है इस पृथ्वी में समाप्त कर रहे हैं। And this guy whom Jesus said, in fact Jesus told this to Peter, on this rock I will build my church. और यीशु मसीह ने पतरस को ये कहा कि इस पत्थर पर मैं एक कलीसिया बनाने वाला हूँ। Patros, pattar. I hope you understand. पतरस और पत्थर इसके समानता आप जान सकते हैं। You see, Jesus was leading his disciples, and we can think that these disciples were cool, nice, educated, handsome men, but they were not. हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ जो शिष्य थे हमको ऐसा लगेगा कि हाँ वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत स्मार्ट थे, होशियार थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन नहीं, उनके पास वो सब कुछ नहीं था। They were kind of troubled when Jesus said he's going to leave. और जब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मैं तुमको छोड़ के जाने वाला हूँ तो वो बहुत परेशानी में आ गए। So Peter said, Jesus, don't worry, I'm with you. Even if you're about to be killed, I will die with you. लेकिन पतरस ने कहा यीशु मसीह को कि यीशु मसीह तू फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तू जहाँ पे भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। Jesus said, you are the one who's going to deny me 3 times. और तब यीशु मसीह ने कहा पतरस को कि तू ही है जो मुझे 3 बार इनकार करने वाला है। And then Jesus goes and says, let not your hearts be troubled. और उसके बाद यीशु मसीह आगे कहता है कि तुम्हारा जो दिल है वो परेशानी में ना आए। And he goes on to say in verse 3, if I go and prepare a place for you, I will come again to receive you to myself, that where I am, there you may be also, and where I go you know, and the way you know. उसके बाद यूहन्ना के 14 में 3रा वचन में ये लिखा है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। Now after 3 years, अभी 3 साल के बाद sticking around with Jesus, यीशु मसीह के साथ ये लोग रहे। now Thomas said to Jesus, और जो थोमा है उसने यीशु मसीह से कहा, Lord, प्रभु, we don't know where you are going now. हमको नहीं मालूम आप कहाँ जा रहे हो। How can we know the way? हमें कैसे पता चलेगा कि वो रास्ता क्या है? Jesus would have looked at it. If I was Jesus, I would have looked at him like this. अगर मैं यीशु मसीह होता तो मैं शायद उसे घूर के देखता। And Jesus said to him in verse 6, और उसके बाद यीशु मसीह ने 6वां वचन में कहा, I am the way, यीशु ने कहा मार्ग I am the truth and the life. मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। No one comes to the Father except through me. बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। You see, one side you see in the previous chapter, Judas is going to betray Jesus. एक पिछले हमने जो अध्याय में देखा था वहाँ पे लिखा है कि यहूदा जो है वो यीशु मसीह को इनकार करेगा। And here we also saw in the previous chapter, Peter is told that he's going to deny Jesus 3 times. और पिछले अध्याय में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह पतरस जो है वो यीशु मसीह को इनकार करेगा। And then we see Jesus saying, I'm going to go and prepare a place for you guys and come and take you home, man. It's like, hey, you know what? I'm going to go to Uti. I'm going to prepare a room for you. And then I'll come and take you guys. Okay, be ready. That's exactly what Jesus is saying. और यहाँ पे यीशु मसीह उसके बाद कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करके रखूंगा और आऊंगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा। They say, और वो कहते हैं, I don't know where you're going, Jesus. हमें नहीं मालूम कि आप कहाँ पे जा रहे हो यीशु मसीह। In verse 4, Jesus says, where I go, you know, and the way you know. और यहाँ पे यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ उसे तुम जानते हो। So probably these guys would have said, I don't know. तो हो सकता है कि सब शिष्यों ने एक दूसरे को देख के कहा होगा कि क्या तुम्हें मालूम है यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? That's the attitude. और यही यहाँ इनका व्यवहार था। That is why Jesus says, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. और इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही वो सत्य हूँ, मैं ही वो जीवन हूँ और मैं ही वो मार्ग हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। And their disciples would have thought again, what the heck is happening here? और शिष्यों ने ये सोचा होगा कि अरे ये क्या हो रहा है? No one comes to the Father except through me. कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता मेरे बगैर। And then Jesus goes on verse 7. और उसके बाद जो है यीशु मसीह 7वां वचन, If you had known me, यहाँ पे लिखा है यदि तुमने मुझे जाना you would have known my Father also, and from now on you
From now on, you know him and you have seen him. तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। Now, Peter said something. Jesus responded. अभी पतरस ने कुछ कहा और यीशु मसीह ने उसका उत्तर दिया। Then Thomas said something. Jesus said an answer. और थोमा ने भी कुछ कहा और उसका भी यीशु मसीह ने जवाब दिया। So Peter decided to be quiet and Thomas decided to be quiet. Now Philip decided, I want to ask you a question. अभी थोमा चुप रहा और पतरस चुप रहा। उसके बाद जो है फिलिप है उसने आके एक सवाल पूछा। Verse 8. और 8वां वचन में हम देखेंगे। Philip says, Lord, show us the Father and it's sufficient for us. और फिलिपुस ने उससे कहा है प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। What Jesus said in verse 7 is, if you have known me, you would have known my Father also. यहाँ पे यीशु मसीह ने 7वें वचन में कहा कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। Who is this Father? ये पिता कौन है? He's talking about God himself. यहाँ पे वो परमेश्वर पिता के बारे में बात। And he says, if you from now on know me, you have known God. As simple as that. और वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे जाना है तो इसका मतलब ये है कि तुमने मेरे पिता परमेश्वर को भी जाना है। You have known God if you see me. अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने परमेश्वर को देखा। So now when Jesus says, if you have seen me, you have seen God, Philip is asking a question. और जब यीशु मसीह ने ये कहा कि अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने परमेश्वर को देखा है, और फिर फिलिपुस वापस से ये सवाल पूछा। See, the apostles were very smart and intelligent people. जो प्रेरित थे वो लोग इतने होशियार और इतने बुद्धिमान नहीं थे। They were not wise. वो लोग बुद्धिमान नहीं थे। You know, they always made mistakes. उन्होंने हमेशा गलतियां की। And Jesus still called them apostles. और फिर भी यीशु मसीह ने उन्हें प्रेरित करके कहा। In fact, you see, this Bible affirms them to be apostles. और हम देखते हैं कि इस बाइबल में उन लोगों को प्रेरित करके कहा गया है। If you and I would have had these guys with us in our team, we would have fired them in just probably 2 or 3 days. अगर आपको और हमको ऐसे लोग मिलते जो यीशु मसीह के साथ थे तो शायद हमने 2-3 दिन में ही उनको काम से बाहर निकाल दिया होता। After 3.5 years, ये 3.5 साल के बाद still Jesus is so patient. अभी भी यीशु मसीह उनके साथ धीरज बनाए रखे हैं। They have spent so much of time with Jesus closely, and yet they have no knowledge about who Jesus is. उन्होंने यीशु मसीह के साथ इतना समय बिताया लेकिन फिर भी अभी भी वो यीशु मसीह को नहीं जाने। They're not very, very capable of gaining a lot of knowledge. और उनका उतना वो जो थे उतना उनमें ज्ञान और बुद्धि नहीं था यीशु मसीह को जानने। See, what kind of people you hang out with? आप किस तरीके के लोगों के साथ आप घूमते हो? Would you like to hang out with people like Philip and Peter and Thomas who doesn't recognize who you are? क्या आप ऐसे लोगों के साथ घूमना पसंद करेंगे जैसे थोमा हो या पतरस हो या फिलिपुस हो जिनको कुछ भी नहीं मालूम यीशु मसीह के बारे में? आपके बारे में? जिनको आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम? Would you hang out with some friends? क्या ऐसे दोस्तों के साथ आप घूमेंगे? Think about it. इसके बारे में आप सोचें। What kind of friends would you like to hang out with? किस तरीके के दोस्तों के साथ आप घूमना पसंद You have a standard of coolness that this friend should be. You would expect them to look like this, wear clothes like this, and only then they can be part of my gang, my group. I can associate with them. क्या आप ऐसा सोचते हो कि जो मेरे दोस्त है वो एकदम कूल दिखना चाहिए, मेरे जैसे दिखने चाहिए और जैसा मैं करता हूँ वैसे भी उन्होंने करना चाहिए तो ही मैं उनके साथ घूम सकता हूँ? And do you think, I need to hang out with successful people, millionaires, people who have great cars, great haircuts, living in great societies? क्या आप ऐसे लोगों के साथ घूमना पसंद करते हो जो एकदम अमीर हो और जो हमेशा अच्छे कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, जो अच्छे गाड़ी रखना पसंद करते हैं, अच्छा हेयर कट रखना पसंद करते हैं? That's not Jesus' way. और यीशु मसीह वैसे नहीं थे और वो उन लोगों के साथ नहीं थे। Jesus hung out with simple, ordinary, normal people who can't think sometimes. यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ थे जो बहुत ही सामान्य लोग थे और जो ज्यादा सोचते नहीं थे। See, today we take people away from homes and neighborhoods and put them in the classrooms and tell them you have to be educated and have knowledge. और आजकल लोग जो है लोगों को ये कहते हैं कि तुम्हें एक क्लासरूम चाहिए जहाँ पे तुमको बैठ के पढ़ाई करना है, तुम्हें बहुत ज्ञान आना चाहिए। And we tell strangers to teach our children. और जो हम जिनको जानते नहीं है उनको हम कहते हैं कि आप आकर मेरे बच्चों को पढ़ाओ। Isn't that what we're doing in schools? क्या हम ये नहीं कर रहे हैं स्कूल में? But we are failing to teach our children. लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं।
See, Jesus' style of ministry was personal, one-on-one with them day and night. Basically, a homeschooling for adults. और यीशु मसीह का यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह जो सिखाते थे वो एक व्यक्ति के साथ उनका वो रिश्ता होता था, एक व्यक्ति को बिठाकर वो सिखाते थे जैसे होम स्कूलिंग होता है वैसे। And these guys had no education. और ये जो लोग थे उनका कोई वो पढ़े लिखे नहीं थे। They were of no discipline. उनमें कुछ भी डिसिप्लिन नहीं था। And Jesus did not pull in new programs. There were no programs. और यीशु मसीह ने ऐसा कोई प्रोग्राम उनके लिए नहीं रखा कि तुम्हें ये प्रोग्राम में जाना है या वो प्रोग्राम में जाना है, नहीं। You know what Jesus did? पता है यीशु मसीह ने क्या किया? He loved them. उन्होंने उनसे प्रेम किया। Love is the priority, guys. प्रेम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। If you're a father who loves your children, you don't see what kind of a skin color your child has, what kind of character your child has, you will love them. अगर आप एक पिता हो, अगर आपका बच्चा जो काला है, आप वो नहीं देखते कि वो कितना काला है या वो कितना अच्छा दिखता है, ये आप सब नहीं देखते। These were not great disciples. और ये जो शिष्य थे वो बहुत महान शिष्य नहीं थे। After 3 years, Judas betrayed Jesus. 3 साल के बाद जो यहूदा है उसने यीशु मसीह को धोखा दिया। Peter denied Jesus. पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया। The others ran away. बाकी के जो लोग हैं वो लोग भाग गए। That's exactly how they were. और ऐसे ही थे वो लोग। But Jesus showed grace. लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें अनुग्रह दिया। When Jesus saw Peter again, Jesus didn't say, Peter, have you got things right now? This time I don't want you to make the same mistake again. जब यीशु मसीह फिर से पतरस को मिले तो यीशु मसीह ने पतरस को ऐसा नहीं कहा कि पतरस तूने पहले से गलती किया है लेकिन दोबारा ऐसा गलती मत करना, जो भी किया वो वापस दोबारा मत करना, ऐसे नहीं Jesus कहा। only asked him, Peter, do you love me? सिर्फ यीशु मसीह ने पतरस को ये कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? This is the disciple. और इसी को कहते हैं शिष्य। They were not highly qualified, recruited people. और वो लोग इतने ज्यादा उनका क्वालिफिकेशन नहीं था। And still Jesus called them to join his team. और फिर भी यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम मेरे टीम में भर्ती हो जाओ। Do you show grace to other people? क्या आप दूसरे लोगों को अनुग्रह दिखाते हैं? What kind of people do you want to be associated with? किस तरीके के लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हो? Jesus sent these men outside into serving the society, in ministry, representing himself. यीशु मसीह ने इन लोगों को बाहर भेजा सेवकाई के लिए ताकि वो यीशु मसीह का जो परिचय है दूसरे लोगों को दे सके। And he also stood for them and cleaned up their mess, और यीशु मसीह उनके लिए खड़े रहे जब उन्होंने कुछ गड़बड़ी की या कुछ गलती की तो भी यीशु मसीह उनके साथ रहे और सारा गंदगी यीशु मसीह को साफ करना पड़ा। Turn to Luke chapter 15. अभी आप मेरे साथ जो है लूका का 15वां अध्याय में आए। Verse 1 and 2. और उसमें जो है एक और 2 वचन हम I want you to also understand, not only his disciples, Jesus hung out with all common people, sinners also. और यहाँ पे यीशु मसीह सिर्फ शिष्यों के साथ ही नहीं थे लेकिन बाकी जो लोग जो सामान्य लोग थे, जो पापी लोग थे, उनके साथ भी थे। Jesus didn't sin, you have to understand that. यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, ये आपको समझना जरूरी है। You see in verse 1, then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. और हम देखते हैं 15वां अध्याय का 1 वचन में लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। They only came to listen to him. वो लोग सिर्फ आए यीशु मसीह की बातों को सुनने Because he was nice to the sinners. क्योंकि वो पापियों के साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव। He had compassion towards them. वो उनके पास दया उन्होंने दिखाया। He helped them, he served them. He didn't differentiate people. उन्होंने उनकी मदद की, उन्होंने कभी भी लोगों में भेदभाव नहीं समझा। And the Pharisees and scribes complained, saying, "This man receives sinners and eat with them." पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। So what kind of people did Jesus hang out with? तो यीशु मसीह किस तरीके के लोगों के साथ घूम रहे थे? People of no reputation. जिनका कुछ चरित्र ही नहीं था। They were people known as sinners. और वो ऐसे लोग थे जिनको पापी कहलाया जाता था। Tax collectors were those men who would catch hold of you and take your money away. जो चुंगी लेने वाले हैं वो लोग ऐसे लोग थे जो आपको पकड़ेंगे और आपसे वो जो है चुंगी लेते थे, पैसा लेते। Like bribes, people who take bribes away from you. They will find some way or the other to take bribes from you. चुंगी लेने वाले जो ऐसे लोग थे जो रिश्वत लिया करते थे। That's exactly the kind of people Jesus also served.
और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे तरीके के लोगों के साथ थे और उन्होंने सेवकाई की। It is so hard to hang out with these people. और ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों के साथ रहना। But he hang out with the people so that he can change their life. और यीशु मसीह उनके साथ इसलिए थे क्योंकि यीशु मसीह उनके जीवन को बदलना चाहते थे। Please don't misunderstand my message. प्लीज मेरा मैसेज को आप ठीक से समझ लें। Because we are not telling you to go around and hang out with sinners to sin. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पापियों के साथ जाओ और वो जो पाप कर रहे हैं आप भी वही पाप करो। I will give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। I had a friend in Austria, a woman, a lady. और मेरी एक दोस्त थी, ऑस्ट्रिया में एक औरत थी। She was helping prostitutes to come out of the prostitution centers. और वो जो तबायफ है उनकी वो मदद कर रही थी उन्हें उनसे बाहर निकालने के लिए। She used to go there on Friday evenings, Saturday evenings. और वो हमेशा जो है शुक्रवार के शाम को वो जाती थी वहाँ पर। And she spent time with them, and she helps them and all, and comes out. और वहाँ पे जाती थी और उन लोगों की वो मदद करती थी और वहाँ से बाहर आती थी। For someone who will see her from outside, if she's entering into that society where prostitutions happen, what would they think about her? और अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति अगर उस औरत को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, शायद ये भी वही काम कर रही है। But she was there to help them. लेकिन वो वहाँ पे थी उन लोगों की मदद करने के लिए। I don't want you to judge others. That's what I'm saying. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को देखकर किसी का न्याय ना करें। Her heart was so pure to serve those people, had tears running from her eyes. और उसका जो दिल था वो इतना पवित्र था कि वो उन लोगों की मदद करती थी और वो उनके लिए रोती थी। I have a friend here in Mumbai. मेरी एक दोस्त है जो यहाँ पे मुंबई में है। He does ministry in the brothels. और वो जो है सेवकाई करता है जहाँ पे ये जो रेड लाइट एरिया है वहाँ पे वो काम करते थे। Once or many times, as I go to meet him, I have to cross through these people, cross through this area. It's difficult. अगर मुझे मेरे दोस्त को मिलने जाना होता है तो मुझे वहाँ से जाना पड़ता था। He goes there every day. और वो वहाँ पे हर रोज जाता है। But the women there treat him like a brother. लेकिन वहाँ की जो औरतें हैं उसे वो अपना भाई मानते हैं। How come? कैसे? That's the love of Christ, brothers. वो है यीशु मसीह का प्रेम। Do you have that much of love to see a sinner beyond his sin and to be able to love that person and help them to come to Jesus? क्या आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हो जो पापियों के साथ रहकर उनकी मदद करना चाहते हो उससे बाहर निकालने के लिए? क्या आप यीशु मसीह ने जैसा प्रेम किया वैसा आप उनको प्रेम करने के लिए तैयार हो? People act so holy and they separate from everybody, so they are not able to influence the sinners. जो लोग हैं आजकल अपने आप को इतना पवित्र कहलाते हैं कि वो इन लोगों की मदद करने से कतराते हैं। We don't have to hold on to anything, even reputation. हमें ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमें इससे आगे हमें जाना है। Who will say what about us? चाहे कोई कुछ भी बोले, but you have to focus on what God says. लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि परमेश्वर आपसे क्या He can see you from everywhere. वो आपको सब जगह से देखते हैं। Whatever you do in secret, whatever you do in public, whatever area of ministry, what is in your thought, in your heart, everything is aware, everything is clear before God. वो आपका जो गुप्त जीवन है उसके बारे में जानते हैं और आप बाहर क्या करते हैं उसके बारे में वो जानते हैं। आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में जानते हैं। Jesus was not partial to anybody. यीशु मसीह ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। The Bible says when he was born, the angel said that Jesus was born as the savior of the entire world, the humankind. बाइबल में ऐसा कहा है जब स्वर्गदूत आए तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह का जन्म होगा और वो उद्धार करता होगा, वो सब लोगों को बचाएंगे। Jesus had no limits in serving people, whatever their social status was. यीशु मसीह ने सबके साथ काम किया, सबको मदद किया, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह से आए हो। He called them friends. उन्होंने उन्हें दोस्त कहा। And he let them be his friends. और दूसरों को भी उन्होंने अपना दोस्त माना। What about you? आपके बारे में क्या? Do you even talk to your neighbors? क्या आप आपके पड़ोसी से भी बात करते हो? Do you even know the names of the people who are living in the next door? क्या आप ऐसे लोगों के नाम को जानते हो जो आपके पड़ोसी है? क्या आप उनके नाम को जानते हो? Do you know your colleagues' names? क्या आपके ऑफिस में काम करने वाले लोगों के नाम को आप Do you know जानते your हो? clients and their children क्या आप and their names?
क्या आप जहाँ पे काम करते हो आपके क्लाइंट्स या उनके बच्चों के नाम आप Do you जानते even हो? know other church members, family members' names? क्या आप दूसरे कलेशिया का जो परिवार है या उनका उनका नाम आप जानते हो? Do you even know people from your own church and their names and their children's names? और क्या आप खुद के कलेशिया में क्या आप किसी परिवार को जानते हो या उसके नाम को जानते हो या उसके बच्चों के नाम को आप जानते हो? Very important. ये बहुत जरूरी है, Very important. ये बहुत जरूरी है। But you may know big celebrity names. लेकिन हमें बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी का नाम हमें याद रहता है। Maybe their children's names also. शायद उनके बच्चों के नाम भी हमें याद रहता है। Pay attention, guys. तो आप प्लीज ध्यान दीजिए। This is the kind of person Jesus was. और इस तरीके का व्यक्ति यीशु मसीह थे। What kind of a person are you? किस तरीके के व्यक्ति आप हो? Who are your friends? आपके दोस्त कौन हैं? Do you only make friendship with people who are of your language, who are so educated as you are? क्या आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखना पसंद करते हो जो आपका जाति का हो, जो आपका भाषा बोलता है? Do you only hang out with intelligent, educated people like doctors and engineers? क्या आप ऐसे लोगों के साथ घूमना पसंद करते हो जो पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं? And I want to tell you, you need to change that attitude. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये व्यवहार आपको बदलना चाहिए Become like Jesus. और यीशु मसीह जैसा बनिए। All right? ठीक है? That's right. हम प्रार्थना करें। Lord, I just come before you this time and thank you for this opportunity to study your word. परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको ये अवसर दिया है आपका वचन पढ़ने के Thank you लिए। for giving me breath and making me live today. मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सांस दी है ताकि मैं सांस ले सकता हूँ और ये जीवन जी रहा हूँ। I have enjoyed this world. I have enjoyed your creation so much. मैंने इस दुनिया में मैं बहुत आनंदित रहा हूँ। सब कुछ मेरे लिए आपने अच्छा किया है। Thank you. उसके लिए धन्यवाद। Lord, I'm going to remember your birthday. परमेश्वर मैं आपके जन्मदिन को याद करूँगा। And Lord, I pray this time, every one of my friends and brothers and sisters who are listening to this message be touched in their hearts and attitudes changed towards others. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भाई बहन इसे सुन रहे हैं उनके दिलों को आपने छू लिया है और उनका जो भी व्यवहार है वो बदलेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। Lord, we want to be able to minister to sinners, to bring them out of sin. और परमेश्वर हम उन पापियों के लिए हम सेवकाई करना चाहते हैं ताकि हम उन्हें उस पाप से हम उसे बाहर निकाल सकें। We want to help people, not just separate from them and say we are holy. और हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, ना हम ये बोलना चाहते हैं कि हम पवित्र हैं। We don't want to be sinners. हमें पापी नहीं बनना है। We don't want to sin. हमें पाप नहीं करना है। But we are indeed sinners. हम पापी हैं। It's your grace that saved us, Lord. सिर्फ ये तेरा अनुग्रह है जिसने हमें बचाया है। Teach us to show grace to others. हमारी मदद करके हम दूसरों को भी वो अनुग्रह दे Teach सकें। us to show compassion to others. हमारी मदद करके हम दूसरों के प्रति वो दया दिखा सकें। Teach us to be kind and gentle and patient with others. और हमारी मदद करके हम दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, नम्रता में व्यवहार करें। Jesus, you fulfill your mission even when people were not very faithful to you. परमेश्वर आपने आपका जो भी लक्ष्य है उसे आपने पूरा किया जब लोग भी आपके साथ वफादार नहीं थे। Help us to do that. हमारे भी मदद करके हम भी वैसा कर सकें। Jesus, you are our example. परमेश्वर यीशु मसीह तू हमारा उदाहरण है We want to follow you. और हमें तेरे पीछे चलना है। Thank you. धन्यवाद। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। All right. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Hey, I want to greet you Merry Christmas. और मैं आपको मैरी क्रिसमस कहता हूँ And God bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे। Remember to tell people who Jesus is. और ये याद रखो कि आप लोगों को बोले कि यीशु मसीह कौन है। I have an announcement. मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। It is possible for one of our videos to be aired in television, on Christmas Day in the morning at 8 o'clock. हमारा जो संदेश, क्रिसमस का संदेश, शुभ संदेश टीवी में 8 से 8:30 बजे या 8:30 बजे से 9 बजे के अंदर दिख सकता है। आपके पास समय रहेगा, मौका मिलेगा तो देखिए। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया है तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। And listen to these messages fully और ये मैसेजेस को आप पूरा सुनिए and understand it. और इसे समझ लीजिए। If you have any questions, ask us. अगर आपको कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछिए। More than you like us, we want you to, share and learn and grow in God. हम बस यही चाहते हैं कि आप जो है यीशु मसीह में बढ़े और यीशु मसीह का जो शुभ समाचार है वो बांटे। If these messages are useful for you, अगर ये मैसेज आपके लिए महत्वपूर्ण है, please
subscribe. प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you.